in the previous chapter we discussed about the small g, that is acceleration due to gravity. Okay, I told you that when a body is freely falling, okay, that is freely falling means when a body is being attracted only by the gravitational pull of the earth, okay, then it is freely falling. And freely falling body, always there is a change in the magnitude of the velocity of the body, and that is velocity keeps on increasing. Okay, so this change in velocity caused due to the gravitational force of earth is, and the change in velocity means the acceleration is produced in it. So the acceleration produced in a body due to gravitational attraction of earth is known as acceleration due to gravity, and we represent it with small g. Okay, now small g that is a constant as long as the body is on the surface of earth. Okay, but I told you कि when body is taken to some other planet, okay, because g जो है वो किसके साथ वेरी करती है, okay, small g जो है हमने we derived this formula कि g is equal to gm by r square. Okay, यहाँ पे कैपिटल G कांस्टेंट है, m मास ऑफ द प्लैनेट, okay, and r is the radius of the planet. Okay, तो I told you as long as it is on the surface of the earth, okay, तो surface of earth पे small g कांस्टेंट है. Okay, लेकिन जब किसी और प्लैनेट पे हम लेके जाते हैं, किसी भी प्लैनेट पे या किसी भी सैटेलाइट पे, any other heavenly body whose mass is different to that of earth mass and whose radius is also different to the earth's radius, then the value of g will change. Okay, so different planets have the different values of g. Okay, लेकिन अर्थ पे भी different places पे, okay, g वेरी करती है. अब how g varies, कैसे वेरी करती है? Okay, at the various positions on the earth. Okay, अर्थ देखो, we know that earth is not a perfect sphere, एक perfect round body नहीं है अर्थ. अर्थ क्या है? अर्थ एक elliptical sphere है, इस तरह से देखो. Okay, elliptical in shape. अब this is the center of the earth और ये जो है इसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल रेडियस. Okay, and from this point to ये point जो है that is known as polar radius. क्योंकि ये हमारे poles हैं और ये इक्वेटर है. Okay, this is equator. तो दिस इज पोलर रेडियस, दिस इज इक्वेटोरियल रेडियस. अब जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ मूव करते हैं, okay, we move towards the equator, तो what happens, जो पोलर रेडियस है that is slightly lesser, और when we move towards the equator the radius increases. okay, ज़्यादा हो जाता है. तो on an average there is a difference of 21 किलोमीटर. okay, 21 किलोमीटर का क्या मतलब है कि इक्वेटोरियल रेडियस is 21 kilometer greater than that of the polar radius. Okay, कि पोल्स का रेडियस कम है, ये जो वैल्यू है सेंटर से पोल का रेडियस जो है वो कम है, और पोल जो सेंटर से इक्वेटर का रेडियस है, okay, that is greater. okay, इसको हम आर ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस ऑफ पोल्स. ओके, तो इट मीन्स कि आर ई जो है दैट इज ग्रेटर देन आर पी. ओके, कि इक्वेटोरियल रेडियस इज लार्जर देन द पोलर रेडियस. अब ये देखो आप कि वी नो दैट स्मॉल जी जो है दैट इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. अब हम डिफरेंट पोजिशंस पे देखते हैं. लेट द object is at poles. okay, अब जब पोल पे है ऑब्जेक्ट तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी? g की वैल्यू हो जाएगी g m, क्योंकि मास ऑफ अर्थ तो कांस्टेंट है, मास में कोई चेंज नहीं है, कैपिटल G में कोई चेंज नहीं है. लेकिन यहाँ पर r जो है आई टेक द पोल्स का, क्योंकि बिकॉज आई एम टेकिंग एट द पोल्स, तो लेट इट बी ग्रेविटी कैन बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स. तो आर पोल्स का लेंगे एंड दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे देखो जी पी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल्स.
और आरपी मैंने आपको बताया, आरपी क्या है, पोलर रेडियस, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है आरपी, तो आरपी इज द पोलर रेडियस। तो ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इफ द ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर, लेट द ऑब्जेक्ट इज एट इक्वेटर, अब जब ये इक्वेटर पर है तो देन वी विल टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट इक्वेटर। इक्वेटर पर उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी, फिर फॉर्मूला लगाएंगे, तो जी एम डिवाइडेड बाय, नाउ आई विल टेक द रेडियस ऑफ द इक्वेटर, आर ई स्क्वायर। ओके, सो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे जी ई क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर, अर्थ पे नहीं, तो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, मतलब जीई को जी अर्थ से मत कंफ्यूज करना, जीई मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, जीपी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स। ओके, आरपी रेडियस ऑफ पोल्स और दिस इज रेडियस ऑफ इक्वेटर। ओके, नाउ इफ वी डिवाइड फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ओके, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी पी डिवाइडेड बाई जी ई इज इक्वल टू, इधर से आप डिवाइड करोगे जी एम बाय आर पी का होल स्क्वायर, और ये रिवर्स हो जाएगा ऊपर जाके, क्योंकि डिवीजन में है, तो आर ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम, जी एम से जी एम कैंसिल हो गया। ओके, अब जी पी बाई जी ई इज इक्वल टू आर ई स्क्वायर बाय आर पी स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई मेरे पास, तो दिस इज, तो देखो ये क्या आ गया, जी पी बाई जी ई इज इक्वल टू आर ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर पी का स्क्वायर। अब आप ये देखो कि राइट हैंड साइड पे आर ई इज ग्रेटर देन आर पी, ये हमने पहले देखा है कि रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज लार्जर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ पोल्स। ओके, तो जब आर ई आर पी से ग्रेटर होगा तो वी कैन से कि जी पी इज ऑल्सो ग्रेटर देन जी ई। ओके, तो देखो नाउ वी नो दैट आर ई इज ग्रेटर देन आर पी। राइट हैंड साइड में अगर आर ई न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, ओके, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, क्योंकि उनकी रेशियो इक्वल है। ओके, तो जब ये बड़ा है आर ई ग्रेटर देन आर पी, देयरफॉर जी पी इज ग्रेटर देन जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन पोल्स इज ग्रेटर देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर, कि पोल्स पे जी की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर। ओके, ये मीनिंग हुआ इसका कि तो जी वेरी कर रही है पोल से इक्वेटर की तरफ आने में। ओके, तो देयरफॉर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on poles is greater than the acceleration due to gravity on equator। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन निकला। तो इट मीन्स कि जी वेरीज, तो ये मैंने पहला आपको बताया ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, कि हाउ डू जी वेरीज ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ, क्योंकि शेप इसकी इलिप्टिकल है, और शेप इलिप्टिकल है इसलिए जब हम पोल से रेडियस की तरफ मूव करेंगे तो रेडियस इंक्रीज करेगा। पोल्स का पे रेडियस कम है और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है। डिफरेंस 21 किलोमीटर का है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन 21 किलोमीटर का डिफरेंस है, क्योंकि अर्थ का रेडियस जो है 6400 किलोमीटर है, कि अर्थ का रेडियस, तो जब 6400 किलोमीटर, तो ये उससे 21 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से
हम क्या ये मान के चलते हैं कि जब रेडियस इक्वेटर का ज़्यादा है, और अदरवाइज भी आप अगर कॉमन सेंस से सोचो तो रेडियस मतलब डिस्टेंस और स्मॉल जी की वैल्यू आपस में इन्वर्स होती है। तो जहाँ रेडियस ज़्यादा होगा वहाँ जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन की ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑन इक्वेटर विल बी लेसर, और यही हमने प्रूव किया है कि पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर। तो ये पहला था कि ऑन द ड्यू टू द शेप ऑफ द अर्थ, वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अब हम करते हैं वेरिएशन ड्यू टू हाइट, कि हाइट के कारण कितनी वेरिएशन है। अब सपोज करके चलते हैं कि एक बॉडी जो है ये अर्थ है, ठीक है, थोड़ी स्फीयर सी बना दी, दिस इज एट द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस से बॉडी का जो डिस्टेंस है मतलब जो रेडियस है दैट इज r, ठीक है। अब हम मान के चलते हैं कि बॉडी यहाँ पर है, लेट द बॉडी ए, ठीक है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अब ऑब्जेक्ट इज एट h डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सरफेस ये हाइट h है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ दैट इज r प्लस h, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नाउ लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at an height h above the surface of earth. Therefore, total distance of object from the center of earth is r plus h. Okay. अब let an object is kept at the surface of earth. किस सरफेस ऑफ अर्थ पे, देखो जी किसके इक्वल हो जाएगी, gm बाय, जब सरफेस पे है तो सरफेस से सेंटर का डिस्टेंस सिर्फ r है, ओके, तो देन gm बाय r स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब सेकंड केस हम लेते हैं कि लेट ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट हाइट h above the surface of earth. Okay, now therefore g, इसको g dash ले लेते हैं, g dash is the acceleration due to gravity which is being produced in a body when it is kept at height h. जब h हाइट पे है बॉडी तब उसको एक g की वैल्यू उसकी क्या होगी, तो दैट इज इक्वल टू g कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, अब डिस्टेंस हो गया r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। उसी तरह डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा, g बाय g डैश इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर, और ये रिवर्स हो जाएगा इनटू r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g।
तो दिस इज, आप देखो तो क्या इक्वेशन बनी, यहाँ लिख रही हो, g बाई जी डैश इज इक्वल टू आर प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पे देखो, आर प्लस एच इज ग्रेटर देन आर। ओके, जब राइट हैंड साइड पे आर प्लस एच आर से ग्रेटर है तो इसका मतलब g इज ग्रेटर देन जी डैश, यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब बॉडी एक सरफेस पे पड़ी है तो जब यहाँ पर है बॉडी, तो उसको जो एक्सीलरेशन ग्रेविटी उसमें प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू जब बॉडी हाइट पे है तो उससे ज्यादा है। तो वी कैन से कि यहाँ पे देखो, इसको अब ऐसे लिख सकते हैं, सिंस r plus h is greater than r, okay, so therefore g is also greater than g dash। okay, क्या मतलब है, g dash कौन सी g है, जब बॉडी हाइट पे है, तो इसका मतलब जब हम बॉडी को हाइट पर लेकर जाते हैं तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस, क्योंकि जो सरफेस पे g है उसकी वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू द g विच इज एट द हाइट। ओके, तो g डैश हमने किसको लिया था, जब बॉडी हाइट पे है, then it was g dash। तो since तो g is greater than g dash, तो it means conclusion क्या निकला, therefore, okay, यहाँ पे लिखते हैं, ये यहाँ पे लिखते हैं, चलो therefore we can say when an object is taken to a height above the surface of earth, value of g acceleration due to gravity decreases, so it will decrease जब सरफेस से अबव लेके, किसी भी हाइट पे लेके जाओ तो g की वैल्यू हमेशा कम होगी। इसीलिए हम जब माउंटेन्स पे जाते हैं तो g की वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि वी आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, और सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट व्हेन वी आर गोइंग इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ, ओके, अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, इनसाइड द अर्थ डेप्थ में, तो देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। इसको आप जनरल बस लर्न करो, वी वांट प्रूव इट, ओके, क्योंकि प्रूव इज बियॉन्ड योर लिमिट, तो इसलिए सिमिलरली अब 3 कंक्लूजन हो गए। तो सिमिलरली when an object is taken in the depth of the earth, value of g decreases। तो ये 3 कंक्लूजन्स हैं कि पहला मैंने आपको बताया शेप के कारण, शेप पे क्योंकि इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है तो इसलिए जिसका रेडियस ज़्यादा है वहाँ पर g की वैल्यू कम होगी, मोर द डिस्टेंस लेसर द वैल्यू ऑफ g, तो g एट इक्वेटर विल बी लेसर देन दैट ऑफ द पोल्स, ये पहला कंक्लूजन है। सेकेंड, व्हेन अ बॉडी इज टेकन टू अ हाइट, तो वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस। Third, when a body is taken inside the depth of the earth, the value of g decreases। Okay, so these are the 3 conclusions on the, we can say that how the g varies due to shape as well as due to height and depth। Okay, अब मान लो देखो आपको जैसे let it be, let us do one question। जैसे ये क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द हाइट
above the surface of earth. Where value of G becomes half. कि हमें ये निकालना है कि किस हाइट पे G की वैल्यू आधी हो जाएगी. G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है कि किस हाइट पे वो 4.9 रह जाएगी. लेकिन वी डोंट हैव टू गो इन द वैल्यूज. आप देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगी कि वैल्यू. अब हम इससे इक्वेशन ही बनाएंगे. तो पहला हम ये देखेंगे कि जब हमें कंपेयर करना है तो आप हमेशा इक्वेशन से करो विदाउट राइटिंग द वैल्यूज. तो फाइनल रिजल्ट के बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे. अगर आप स्टार्टिंग से ही वैल्यूज पुट करनी शुरू कर दोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा. तो इसलिए आप स्टार्टिंग से पहले इक्वेशंस बनाओ. तो पहली इक्वेशन हम ये लेते हैं कि लेट द ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ अर्थ. So therefore G किसके इक्वल है? G is equal to Gm by R square, where R is the radius of Earth, M is the mass of Earth, G is the gravitational constant. Okay. अब second case, let the object is at height h above the surface of Earth. Therefore, total distance of object from the center of Earth is equal to R plus H. तो अब G क्या हो जाएगी? G dash is equal to Gm by R plus H square. लेकिन हमें गिवन क्या है कि कैलकुलेट द हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वेयर वैल्यू ऑफ G बिकम हाफ टू दैट ऑफ द अर्थ. ओके, कि हाफ हो जाए. तो इसका मतलब G डैश जो है दैट इज G by 2. ओके, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में. नाउ G डैश इज इक्वल टू G by 2, ये गिवन है. आप पहले उसी तरह से दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो. This is first equation, this is second equation. Okay, dividing second equation by first equation. तो G by G dash is equal to Gm से Gm कट गया, R plus H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये आ जाएगा क्या? R plus H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. ये पहले भी हमने अभी करके मैं प्रूव किया है. तो ये वैल्यू आ गई. अब G डैश की वैल्यू हमें गिवन है G by 2. तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ G डैश, तो कितना आ गया? G डिवाइडेड बाय G, और ये G by 2 है. G by 2 है तो by 2 पर जाके into 2 हो जाएगा. ओके, इज इक्वल टू R plus H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर. तो यहाँ से G कैंसिल हो गया. तो क्या आ गया? 2 इज इक्वल टू R plus H डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर. ओके, R plus H का भी स्क्वायर है, R का भी स्क्वायर है. अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, मुझे H की वैल्यू निकालनी है. तो H की वैल्यू निकालनी है तो आई कैन राइट इट लाइक दिस. कैसे लिखें? देखो, इसे मैं ऐसे लिख लूं कि √2 का ये स्क्वायर है. √2 का स्क्वायर 2 के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो देन स्क्वायर से रूट कट गया. तो दैट इज इक्वल टू R plus H डिवाइडेड बाय R का होल स्क्वायर. तो दोनों साइड पे स्क्वायर हम कैंसिल कर देते हैं. ओके, कैंसिलिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स.
ये दोबारा लिख रही है, √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस एच डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर. नाउ कैंसिलिंग द स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. तो √2 इज इक्वल टू r प्लस एच डिवाइडेड बाय r. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे √2r इज इक्वल टू r प्लस एच. r को मैं इधर ले आती हूँ, तो √2r माइनस r इज इक्वल टू h. ओके, r कॉमन आ गया, तो r कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचा, √2 माइनस 1 इज इक्वल टू h. So this is the answer. Okay, तो h is equal to √2 minus 1 into r. √2 की वैल्यू अगर और सॉल्व करना चाहो तो √2 किसके इक्वल होता है, 1.414 माइनस 1, तो 0.414. तो 0.414 r is equal to h. नहीं तो यहाँ तक भी छोड़ दोगे, that is also correct. Okay, तो r into √2 minus 1 is equal to h. Okay, this we have to. तो अगर हमें r की वैल्यू गिवन होती, ये तो हमें जनरल हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, अगर r की वैल्यू गिवन होती तो वी कुड हैव सॉल्व्ड इट. ओके, अब इसी क्वेश्चन को हम एक और वे से करते हैं. ओके, ये मैंने आपको h निकाल के दिखाई है. अब अगर मेरे पास h हो, फिर g की वैल्यू क्या होगी. ओके, अब ये कैलकुलेट करते हैं. तो लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस बेसिस. ओके, तो दिस इज द, अब मान लो हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि मान लो मैं ये दे दिया कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g when an object is at a height of 30 meter above the surface of earth. क्या, अगर ये दे दिया कि अब हाइट गिवन है, जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सेम वे आप दो इक्वेशंस बनाओगे. ओके, इसमें भी आप हमेशा कंपैरिजन में इक्वेशन ही बनानी है, ये आप हमेशा याद रखो, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं हम एक सरफेस ऑफ अर्थ पे और एक 30 मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ. तो आप इसी तरह मतलब सी हाउ आई एम डूइंग, तो उसको क्वेश्चंस को देखो और उस हिसाब से फिर आप उसकी प्रैक्टिस करो. ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन, लेट द बॉडीज बी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, लेट द ऑब्जेक्ट बी एट द सरफेस ऑफ अर्थ. जब सरफेस ऑफ अर्थ पे है तो देयरफॉर g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. सरफेस ऑफ अर्थ के लिए यही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि रेडियस इज द डिस्टेंस. ओके, तो g इज इक्वल टू gm बाय r स्क्वायर. सो दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन. ओके, अब सेकंड इक्वेशन में वो कह रहा है कि h इज 30. ओके, नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट 30 meter above the surface of earth. Okay, then distance of object from the surface of earth is equal to r plus 30. देखो आप इसको विजुलाइज करो, ये अर्थ है
ये अर्थ का रेडियस है और इसके ऊपर यहाँ पर ऑब्जेक्ट 30 मीटर ऊपर है, यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, रेडियस प्लस 30 मीटर, तो इसलिए मैंने r प्लस 30 ले लिया। ठीक है, अब इक्वेशन बनाओ, देयरफॉर g डैश किसके इक्वल हो जाएगी, gm, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है और मास ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, सिर्फ कैन में हाइट इंक्रीज हुई है, तो r प्लस 30 का स्क्वायर। ओके, तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। तो उसी तरह आप हमें वैल्यू ऑफ g निकालनी थी, g बाई जी डैश। ओके, तो डिवाइड करो दोनों इक्वेशंस को, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय या 1 बाय 2, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो g डिवाइडेड बाय g डैश इज इक्वल टू gm बाय आर स्क्वायर, और ये रिवर्स हो जाएगा, इनटू r प्लस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय gm, gm गया। okay, तो क्या आ गया, g बाय g डैश इज इक्वल टू r प्लस 30 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, इसका स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास। अब g की वैल्यू हमें 9.8 या 10 भी मान के चलो आप। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय g डैश। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हमें g की वैल्यू पता है और g डैश की हम इसकी भी स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारी रेशो ही निकल सकती है बस। ठीक है, तो 9.8 अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हैं तो 9.8 डिवाइडेड बाय g डैश, देखो और नहीं कुछ भी बनेगा, इसका रेशो ही आएगी, तो ये आ गई 9.8 डिवाइडेड बाय g डैश इज इक्वल टू r प्लस 30 और r का स्क्वायर नीचे है और r स्क्वायर ही ऊपर है। चलो अगर हम इसको अलग अलग भी लें तो r प्लस 30 का स्क्वायर, r प्लस r, तो प्लस 30 बाई r, तो लेट इट बी। इसको अगर सॉल्व करें तो r स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60r डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो ये अब आपका थोड़ा सा वो हो जाएगा। क्या अगर हम इसको तो 9.8 r स्क्वायर फिर माइनस r स्क्वायर, तो g डैश की वैल्यू आपकी ऐसे आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.8 r स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू r प्लस 30 का होल स्क्वायर, यही बन गया, ऊपर तो यही है g इंटू r प्लस 30 का होल स्क्वायर। तो r स्क्वायर अगर हम 9.8 r स्क्वायर इधर ले जाते हैं तो हमारे पास ये बन गया, या r स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो 9.8 r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर 8.8 r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हो तो लेट इट जी डैश है ये। तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। देखो हमें g डैश की वैल्यू निकालनी थी, तो g डैश जो है दैट इज इक्वल टू 9.8 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो दिस वुड बी द g डैश की वैल्यू निकालनी थी। अगर हमें ये मतलब हमारी एक जनरल इक्वेशन आ गई, अगर r की वैल्यू हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट फर्दर। क्या हम r की वैल्यू से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो अगर हम वैसे भी काटें तो 9.8 r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 900 प्लस 30, अगर हम r की वैल्यू भी लगाते हैं तो 9.8 इंटू 6400 इंटू 6400, r की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर,
आर स्क्वायर कितना होगा 6400 इंटू 6400 प्लस 30 इंटू 2 60 आर 60 इंटू 9 6400 ओके और प्लस 30 का स्क्वायर 900 का स्क्वायर ओके। तो यहाँ से भी आपका सारा मल्टीप्लाई करके ऐड करके कर सकते हो। तो ये वैसे कॉमन आ जाएंगे बहुत सारे ठीक है। ऊपर कितना कॉमन आ गया एक बार आएगा बस। चलो इसको सॉल्व कर लो। ये दोनों को मल्टीप्लाई प्लस दिस a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर ठीक है। तो इसको अब यू सॉल्व इट तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ g डैश। तो अगर हम करें सॉल्व करके भी देखो आप तो क्या बन जाएगा 9.8 ऊपर तो सारा मल्टीप्लिकेशन है ठीक है। नीचे ही हमारा प्लस में है तो नीचे क्या बनेगा 64 इंटू 64 इंटू 64 कितना बना 4096 यस 4096 के बाद 4 0 प्लस क्या 1 2 3 8 6 24 384000 प्लस 900 तो ये आ गया आपका। ये आ गया मल्टीप्लाई करके सारा ठीक है 9 4 ये आ गई सारी फिगर। तो 41344900 और 810 इसका आ गया। तो 2 0 से गई 1 0 1 0 से गई ठीक है। ये सारा डिवाइड हो गया। ये 64 से भी जाएगा आप वैसे भी करके देख लो 4 16 का 4 से भी जाएगा। ये 4 है 4 0 12 12 नहीं 4 पे तो जा नहीं रहा बच्चे 4 पे नहीं जाएगा तो 64 ऐसे जाएगा। बस अब इसको मल्टीप्लाई करो 64 इंटू 640 इंटू 98 डिवाइडेड बाय दिस करके फिर सॉल्व करो ओके। तो देन यू विल गेट द जी डैश वैल्यू। तो यू डू इट योर सेल्फ नाउ ओके। इसको आगे अपना सॉल्व कर लेना कि क्या होगा। बट फाइनली मतलब वी हैव कम हियर यहाँ तक आ गए। तो कई बार हम यहाँ पे भी छोड़ देते हैं क्वेश्चन अगर आर को अगर क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड वो है तो इतना भी फॉर्मूला वो कई बार यहाँ तक ही डेरिवेशन ही पूछता है आपसे ओके। और अगर आगे पूछे तो यू कैन वैल्यू कैलकुलेट करो फिर पूरी आर की वैल्यू अगर गिवन है आपको तो फिर उससे फिर आप फुल कैलकुलेशन शो करो। तो दिस इज हाउ वी कैन डू ओके। तो वही इक्वेशन है बस इक्वेशन को फाइनल लाने के बाद देन पुट द रिजल्ट्स। अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ से रिजल्ट्स डालने शुरू कर दोगे ये सब तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ओके एंड यू वॉन्ट बी एबल टू सॉल्व इट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ओके। सो दिस इज हाउ। तो ये थे कि हाउ द जी वेरीज ओके विद द शेप एज वेल एज विद द हाइट कि हाइट के साथ कैसे वेरी करती है और शेप के साथ कैसे वेरी करती है ओके। तो मैं थोड़ा कंक्लूड दोबारा कर देती हूँ कि वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज ऑलवेज कांस्टेंट ओके। वो कांस्टेंट है। बॉडी चाहे हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो बॉडी की कोई भी शेप हो कोई भी साइज हो उस पर स्मॉल जी की वैल्यू कभी डिपेंड नहीं करती ओके। इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इट नेवर डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती। ऑब्जेक्ट हॉलो हो या ऑब्जेक्ट सॉलिड हो ऑब्जेक्ट हैवी हो या ऑब्जेक्ट लाइट हो ओके। जी इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑन अ पर्टिकुलर प्लैनेट ओके फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ओके इफ दे आर केप्ट नियर द surface of the planet or on the surface of the planet okay। G वेरी कब करती है डिफरेंट हेवनली बॉडीज पे G की वैल्यू डिफरेंट होगी okay। अगर हम जुपिटर पे जा रहे हैं तो वहाँ G की वैल्यू कम डिफरेंट होगी। अगर हम सैटर्न पे जा रहे हैं तो और डिफरेंट होगी। वीनस पे जा रहे हैं तो डिफरेंट होगी। अर्थ पे डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये प्लैनेट के या जिस ऑब्जेक्ट है या जैसे प्लैनेट जो है उसके मास पे डिपेंड करती है और उसी के रेडियस पे डिपेंड करती है G की वैल्यू ओके। तो डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट मासेस दे हैव डिफरेंट रेडियाई ओके। इस तरह अगर हम मून पे चले जाएं तो मून पे भी G की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि मून का जो मास है वो अर्थ के मास से डिफरेंट है। मून का रेडियस अर्थ के रेडियस से डिफरेंट है कि वो भी हम प्रूव करेंगे फिर कि मून पे क्या चेंज आएगी। तो इसलिए डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट मासेस दे हैव डिफरेंट रेडियाई सो वैल्यू ऑफ G विल बी डिफरेंट ऑन द डिफरेंट हेवनली बॉडीज ओके। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखनी है। लेकिन जब तक ये अर्थ के सरफेस पे है
ओके, और नियर द सर्फेस ऑफ अर्थ है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, एंड दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम न्यूमेरिकली वी टेक इट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ इट इज गिवन, ओके, नहीं तो हम एग्जैक्ट वैल्यू को लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर जी, क्योंकि शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फीयर, इट इज इलिप्टिकल, ओके, तो इसलिए जो पोलर रेडियस है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल रेडियस। इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है, ओके, और वो डिफरेंस रेट 21 किलोमीटर का है, लेकिन इट इज़ मोर, ओके। तो जब रेडियस इंक्रीज हो जाएगा तो स्मॉल जी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द रेडियस, कि रेडियस स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ये कहते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, ओके। तो अब क्योंकि इक्वेटर का रेडियस ज़्यादा है तो इसलिए इक्वेटर पे स्मॉल जी की वैल्यू एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑन पोल्स विल बी लेसर। इक्वेटर पे हमेशा स्मॉल जी की वैल्यू कम होगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ द पोल्स ऑफ द अर्थ, ओके। पहला तो हमने ये कंक्लूजन निकाला। सेकेंड हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाते हैं सरफेस से, तो हाइट पे जाते जाते हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। तो जब सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, ओके। तो व्हेन वी मूव अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ टुवर्ड्स द माउंटेन्स एंड अबव एट द हाइट, ओके, देन वैल्यू ऑफ जी ऑलवेज डिक्रीजेस, ओके। और थर्डली व्हेन वी गो इनसाइड द डेप्थ ऑफ द अर्थ के अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम वो तो फिर अंदर जाते हैं तो रेडियस कम हो जाएगा, ओके। वो कम नहीं होता, उसके लिए भी मतलब वो क्योंकि दिस इज़ द जो इसकी डेरिवेशन है दैट इज़ बियॉन्ड योर बुक, ओके, तो हम उसको डिराइव नहीं कर रहे, लेकिन आपको अभी बस यही याद रखना है कि व्हेन वी गो इनसाइड द डेप्थ ऑफ द अर्थ देन ऑल्सो द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस, ओके। हाइट पे भी डिक्रीज होगी, डेप्थ पे भी डिक्रीज होगी, और इक्वेटर पे भी डिक्रीज होगी एज कंपेयर टू पोल्स, ओके। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक कि हाउ द जी वेरीज, ठीक है। तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल उससे रिलेटेड बताएं, तो और जो क्वेश्चंस हैं या और फॉलिंग बॉडी के बारे में या इसके जी की वेरिएशन ऑन द मून सरफेस, ठीक है, ये फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही करो, थैंक यू।